Today's topic is linear equation involving more than two variables. So in the previous videos, we have done linear equation. What is linear equation? Linear equation with one variable, with two variable. Every method related to that, we have done all in the previous video. For that, you can check previous videos. And now the last part of linear equation is involving more than two variables. Simple, when your variables, now in this case the variables are going to be more than two. वहां पे हमारा कैसा इक्वेशन रहता था? फॉर एग्जाम्पल टू वेरिएबल के केस में 2x plus 3y is equal to something or plus something and then equal to, मतलब x y ही रहता था, that is two variable only. Now what is going to happen? p q r or x y z, like three variables are going to be there. So how to solve that when there are going to be three variables? So these x y z is your variables a b c coefficient and d constant, as we have already done. So we'll see the equation related to it. So you can see this is the equation where there are three variables. तीन equations are given over here and all the three are having three variables. So now we are directly going to calculate the same, that when there are three variables equation, how to solve that. So now you can see there are three equation. As I said, आपको three equation के लिए आपको two equation and one equation solve करना आना चाहिए, because three equation how we are going to go with, we need to convert it into two variables, then we need to convert into one variable, then we can get the answer. One में आ गया तो हमारे पास आंसर भी आ जाएगा उसका कैलकुलेशन करके, लेकिन थ्री में ये रहेगा कि first you have to convert into two variable, because what are actually what we want to do from this equation, these equation is x y z का value हमें निकालना है. So it is not mentioned that what to calculate, but what we need to calculate over here is x का value, y का value and z का value. After that, anyone can put those values in any of the equation and you can calculate as well कि ये right hand side left hand side के equal है कि नहीं है. So let's start calculating it. So there are three equations with three variable. I'm going to name them equation number 1, equation number 2 and equation number 3. So it will be helpful for further calculation part, क्योंकि हम बहुत कुछ करने वाले हैं अलग अलग इक्वेशन के साथ. तो अगर हमें पता रहेगा कौन सी इक्वेशन का क्या किया है तो वो तभी होगा जब हमने हर इक्वेशन को नंबरिंग कर रखी होगी. सो दीज आर till now we have these three equations. कोई भी नई इक्वेशन अगर हम आगे बनाएंगे तो उसका एक नया नंबर दे देंगे. दैट कैन बी इक्वेशन 4 और इक्वेशन ABCD, whatever you want. So I'm going to start with the first. What we need, as I said, आपको क्या करना है, दो वेरिएबल की इक्वेशन बनानी है. So in this what we need to do, हमें आप कोई भी दो इक्वेशंस को ले लीजिए and then calculation you can start. Any two equation, you can take equation number 1, equation number 2, you can take equation number 2, equation 3, you can take equation number 1 and equation number 3. दो कोई भी equations you can take. कोशिश कीजिए जो सबसे सिंपल आपको नजर आए उसको लीजिए, because in that case it is going to be simple to calculate. As I said, आपके पास तीन वेरिएबल है, हमने इसको दो वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, so that दो वेरिएबल की आ जाएगी तो it will be easy to calculate. तो दो वेरिएबल कैसे हो सकते हैं? अगर x y z में से कोई भी वेरिएबल निकल जाए, इसमें से एलिमिनेट हो जाए, तो हमारे पास दो वेरिएबल रह जाएंगे. So that is the one way. So what we can do, as you can see, x y z जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, 1 1 1 है, x भी 1 है, y भी 1 है, z भी 1 है, बट यहाँ पे 2 2 3 z है. एंड सिमिलरली हियर आल्सो देयर इज ओनली एक वेरिएबल है जिसके साथ कुछ भी नहीं है. सो मेरे को जो नजर आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंगली हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली. सबसे इजीली जो एलिमिनेट होगा यहाँ पे y वेरिएबल हो सकता है, सो दैट x और z की हमारे पास इक्वेशन आ जाए एंड देन वी कैन कैलकुलेट एनी वन वेरिएबल्स वैल्यू. एक किसी वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो बाकी के दो अपने आप निकल जाएंगे. why I am saying, but you can take any वेरिएबल, आपका आंसर सेम ही आएगा.
अगर ये यूनिक सोल्यूशन वाला इक्वेशंस रहेगा तो, बट एनी इक्वेशन यू कैन टेक. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आई एम टेकिंग. बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इक्वेशन नंबर 1 जो है ना, इसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन करने वाली हूँ. मतलब पूरी इक्वेशन को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी. दिस साइन आई एम यूजिंग फॉर मल्टीप्लीकेशन. For better understanding, what I'm doing, I'm multiplying whole equation with 2. क्यों? दो, अगर मैं सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मैं किसी भी वेरिएबल को इसमें से उड़ा सकती हूँ. सो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दिस इज गोइंग टू बी 2x, दिस इज गोइंग टू बी 2y, दिस इज गोइंग टू बी -2z एंड दिस इज गोइंग टू बी -2. यही हो जाएगा. ठीक है, तो मेरा न्यू इक्वेशन बन गया ये. इक्वेशन 2 मेरा, इक्वेशन 1 जो है मल्टीप्लाई विद 2 करके मैंने ऐसा कुछ इक्वेशन बना लिया. ठीक है, सो अब मैं अगर व्हाट वी नाउ नीड टू डू इज, हम इन तीनों को, यू कैन डू प्लस, यू कैन डू माइनस. आप इसमें सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो. व्हाट यू जस्ट नीड इज, रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि कोई भी एक वेरिएबल यहाँ से खत्म हो जाए. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था मुझे y को खत्म करना है, तो y को खत्म करने के लिए अगर मैं माइनस करती हूँ दोनों को तो ये y नहीं हो पाएगा खत्म. सो व्हाट वी नीड टू डू इज, मैं दोनों इक्वेशंस को वी आर गोइंग टू ऐड. दोनों इक्वेशंस को वी आर गोइंग टू ऐड. तो जब आप 2x + 2x करेंगे, इट इज गोइंग टू बी 4x, सॉरी 4x, एंड ये तो आपका 0 हो जाएगा. +2 - 2 is going to be 0. Then there is going to be z, 1z only, because 3 - 2 is going to be 1, and 8 - 2 is going to be 6. तो ये अगर आप ध्यान से देखें, ये आपके पास एक नया इक्वेशन आ गया है, विच आई कैन नेम इक्वेशन A. इसको आप इक्वेशन 4 भी दे सकते हैं, इक्वेशन 5 भी दे सकते हैं नाम. दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, वट एवर यू वॉन्ट टू डू. बट 1 2 3 मत दीजिएगा. सो इट विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ इक्वेशन, एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस फॉर यू. 1 2 3 क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशंस हैं हमारे पास, तो 1 2 3 नहीं देंगे, उसके अलावा कुछ भी दे दीजिए. सो ये मेरे पास एक नया इक्वेशन आ गया xz. नाउ व्हाट यू नीड, अब कोई भी और 2 इक्वेशंस लेंगे, सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे, बट करना क्या है, उसमें से भी आपको y को उड़ाना पड़ेगा, मतलब y को एलिमिनेट करना पड़ेगा. अगर आप कोई और वैल्यू, कोई और वेरिएबल को एलिमिनेट करते हो तो देन दिस इज ऑफ नो फन. ये इसकी कोई फिर वैल्यू नहीं रह जाएगा, क्योंकि तभी हम आगे का प्रोसेस कर पाएंगे. तो आपको अभी सेकंड, जब आप 2 इक्वेशंस और लेंगे, जैसे मैं आई एम गोइंग टू टेक इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. सो आई एम टेकिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. सो इसमें भी मैं y को ही एलिमिनेट करूंगी. सो इफ यू कैन सी, यहाँ पे 2y है और यहाँ पे y सिंगल है. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट आई कैन डू, अगेन आई कैन मल्टीप्लाई विद 2. क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मेरे पास y सेम हो जाएंगे, विच आई कैन इन द फर्दर प्रोसेस आई कैन एलिमिनेट. सो जब मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इक्वेशन नंबर 3 को 3 को, इट इज गोइंग टू बी 4x, then -2y, then 4z, and this is going to be 18. 9 into 2 is going to be 18. So ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है आपकी आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 2. ठीक है जी. सो नाउ इफ वी कैन सी, माइनस एंड माइनस का साइन है, सो प्लस करती हूं अगर मैं यहाँ पे, देन अगेन आई एम गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स. माइनस ही थे ना दोनों, हाँ. So again, what we are going to do, we are going to plus both the equations, and sorry, not plus, because plus अगर करेंगे तो this is going to be minus only, तो फिर ये 4y बन जाएगा, हमें चाहिए 0. So for that we need to minus it. Both the equation we need to माइनस. इक्वेशन 1 2 में से इक्वेशन नंबर 3 माइनस कर देंगे. अगर माइनस करेंगे इसमें, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 2x - 4y इज गोइंग टू बी -2, 2x - 4x इज गोइंग टू बी -2x,
एंड ये तो आपका 0 हो गया, एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस z and minus 10. So this is going to be our new equation, that is your equation number, which I am giving number B. So as I said, you can name it number 4 and 5 as well. तो I named this A and B. आप 4 and 5 भी दे सकते हो. अब मेरे पास ये equations आ गई, which is now it is very easy to calculate, because if you can see two variable equation है, you know how to calculate two variable. That's the way how we are going to calculate it. So this is we have done. So these are the new equation A and equation B. Now what we need to do, very simple. आप इसमें से, जैसे हमने 3 वेरिएबल्स में से एक को उड़ाया था, अब 2 है हमारे पास, 2 में से किसी भी एक को उड़ा दीजिए इसमें से, यू विल गेट द आंसर. बाय डिफॉल्ट यहाँ पे z जो है वो सेम है दोनों इक्वेशन में, सो वी कैन रिमूव z फ्रॉम हियर, एंड इफ वी कैन सी अगेन प्लस एंड माइनस का साइन है. So what we are going to do, we need to do plus only again, and plus करने पे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 2x, z तो 0 हो गया, and it is going to be -4, 10 minus 6 हो जाएगा आपका this, and x का वैल्यू is going to be -2. x का वैल्यू is going to be -2. 4/2 करेंगे तो -2. So this is our value जो हमें अभी तक चाहिए था. किसी एक का हमें आंसर चाहिए था, तो हमारे पास x का वैल्यू बड़े आराम से आ गया है, दैट इज -2. सो वी कैन कैलकुलेट नाउ द अदर वेरिएबल्स. तो इसमें किसी में भी आप ना, कि दोनों में से किसी में भी 3 वेरिएबल्स में जाने से अच्छा है अभी, क्योंकि हमें z का चाहिए. तो व्हाट वी कैन डू, मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ. आई कैन गेट z वैल्यू ऑल्सो. सो 4x आया है -2 plus z equal to 6 ना. तो this is going to be -8 and plus z equal to 6. तो आपका z आ जाएगा यहाँ पे 6 plus 8, that is going to be 14. तो we can see now our z is 14. इसको डिफरेंट कर देते हैं. So very simple, x भी है हमारे पास, x is -2, z is 14, y निकल जाएगा, किसी में भी y, x और y डालिए, z आ जाएगा आपका. मैं इक्वेशन नंबर 1 आई एम टेकिंग. तो इक्वेशन नंबर 1 ये थी हमारे पास. आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इन इक्वेशन नंबर 1 x और z का वैल्यू आई एम गोइंग टू पुट इन. x हमारा है -2, y हमारे पास है नहीं, और z हमारे पास है 14, और हमें चाहिए y का वैल्यू. तो माइनस इंटू माइनस प्लस, दिस इज गोइंग टू बी -16 प्लस y इक्वल टू -1. दिस इज गोइंग टू बी y इक्वल टू -1 प्लस 16, एंड y इज गोइंग टू बी 15. तो आपका y का वैल्यू आ जाता है 15. सो दिस इज हाउ टू गो विद इट. सॉरी. सो हमारे सारे वेरिएबल्स के आंसर्स हमारे सामने हैं. x is -2, y is 15, and z is 14. So this is how to go with it. 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस में आपको सॉल्व करना है. फर्स्ट टू कन्वर्ट इनटू 2 वेरिएबल एंड देन 1 वेरिएबल. किसी भी एक वेरिएबल का आंसर आने पे यू कैन पुट इट into 2 and 3 variables information, you will get the other 2 variables answer as well.